بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں آلریڈی، الگ الگ قسم کی چیزیں۔ ایک اہم چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں نازل فرمایا شب قدر میں، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں مکہ مکرمہ میں جب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ تو 40 سال کی عمر مبارک سے نزول شروع ہوا، پھر آپ 13 سال تک وہیں پر رہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد میں 10 سال آپ وہاں پر رہے، 10 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، یعنی 13 سال مکہ میں، مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے آیتیں کر کے اور مختصر صورتیں اس طرح سے قرآن مجید کو فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ ابھی قرآن ہے کیا؟ تو ہم قرآن مجید کی تعریف میں یہ بولیں گے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ذریعے رسولوں کے سردار سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے، یعنی قرآن مجید جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا وہ قرآن کی تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے اور محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر منقول ہے، یعنی تواتر کے ساتھ ایک بہت زیادہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور انہی لوگوں نے بہت سارے لوگوں تک پہنچایا، وہ بہت سارے لوگوں نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، اسی طرح ایک بڑی تعداد سے ایک بڑی تعداد تک قرآن پہنچتا رہا، اسی کو تواتر کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کہیں ٹوٹا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی سے قرآن مجید آگے تک پہنچا، نہیں، ایک جو ہے وہ رسول اللہ ہے بس، جو فرشتے سے لینے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے لینے۔ بعد میں حضور نے ایک بڑی تعداد کو، ظاہر سی بات ہے، تمام صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو پہنچایا، اسی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ تو جو تواتر سے پہنچا ہے اس میں حفاظت کا کیا ہو گیا؟ امکان قوی ہو گیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ کی ہے، قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ فرمائیے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، یہ قرآن ہم نے، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، یعنی جبریل امی جب اس کو پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اسے پڑھیں۔ قرآن مجید کی تعریف میں ہم کیا کیا پڑھے تھے؟ مصاحف میں مکتوب ہے، مصحف کی جمع ہے مصاحف، قرآن مجید جو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں جو کتاب کی صورت میں ہے اس کو بولتے ہیں مصحف۔ مصاحف میں مکتوب ہے یعنی لکھا ہوا ہے، ریٹن فارم میں ہے، محفوظ ہے یعنی بالکل سیو ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر منقول ہے یعنی ایک نے دوسرے کو پہنچایا، دوسرے نے تیسرے کو پہنچایا، اس طرح سے، یعنی صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے اپنے بعد والوں کو، تبع تابعین کو پہنچایا، تبع تابعین نے کیا کیا؟ اپنے بعد والوں کو پہنچایا۔ اسی طرح ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں ایک جماعت سے دوسری جماعت کو قرآن مجید اس طرح پہنچا، تو متواتر منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے، جس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورت سورہ ناس ہے، اور اس کی تعریف میں اور بھی چیزیں اضافہ کی جاتی ہیں، جس طرح مصاحف میں لکھا گیا ہے نا، اسی طرح قراء کے سینوں میں محفوظ بھی ہے، جو سینوں میں محفوظ ہے اور کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ امام سیوطی کی ایک کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بے حساب کتابیں لکھے وہ، اس میں سے بہت ساری چھپ بھی گئی، تفسیر جلالین ان کی مشہور ہے۔ تو امام سیوطی کی ایک اور مشہور زبردست کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ تو الاتقان میں امام سیوطی نے قرآن مجید کے ناموں کے بارے میں لکھا ہے، اور اس میں کیا یونیک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نام اس طرح سے کیوں رکھا؟ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک کتاب کا نام قرآن ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نام کیا رکھا؟ اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا، اسی طرح کتاب رکھا، الگ الگ نام قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا، علم کے جو ماہرین ہوتے نا، کسی بھی علم کے جو ماہرین ہوتے، اس علم کے اجزاء
अज्जा को अलग अलग नाम देते, इस्तिलाहात देते, अपनी अपनी एक टर्म वो मुकर्रर कर लेते, इस्तिलाह मुकर्रर करते, उसी से उसको पुकारते। लेकिन ये जो है कुरान मिन अल्लाह है और ऐसा कलाम है कि उसकी मिसलो मिसाल पहले से मौजूद नहीं है कि पहले कोई मिसाल मौजूद थी उस तरह नाम रखेंगे, ऐसा नहीं हो। बिल्कुल अलग चीज थी ये, ना इस जैसा कोई कलाम करने वाला था, ना इस जैसा पहले कोई कलाम मौजूद था, बिल्कुल लाजवाब था, अनोखा था। तो अल्लाह ताला ने खुद ही इसका नाम रखा। क्या नाम रखा? अल कुरान। अभी अल कुरान को हम दो तरीके से बोलेंगे, या तो आप कुरान बोलेंगे या कुरान बोलेंगे, दो भी सही। बाज लोग ये समझते हैं कि कुरान बोलना गलत है, कुरान सही है। नहीं, दो भी सही है, दो भी उलमा से मनकूल है। दोनों के मानों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन सही दो भी है। अच्छा, इमाम सुयूती ने अल इत्कान में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जाहिज एक बहुत बड़ा अदीब है, उसका कौल उन्होंने नकल किया। जाहिज भी किताबें लिखा है बहुत सारी, 2-3 अहम किताबें हैं उसकी। तो जाहिज का कौल उन्होंने नकल किया है कि अल्लाह ताला ने इख्तिसार और तफसील के लिहाज से कलाम अरब के नामों से जुदागाना अपने कलाम को नाम दिया। चूंकि ये किताब जहाँ नाजिल हुई वो कौन लोग थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? अरबों में थे, कुरैश में थे। तो वो फसीहुल लिसान लोग थे, सबसे ज्यादा अच्छी जबान उनकी। वो फसीह लोग जो थे अरब के, उनके पास क्या होता था? शायरी वो बोलते थे, तो कसीदे वो एक जगह जमा करते थे शायरी के, तो उसको क्या नाम देते थे? दीवान का नाम देते थे। यानी एक शायर अपने मुख्तलिफ कसीदे अगर एक किताब में जमा करता तो वही उनके लिए बहुत बड़ा शाहकार होता था, और उस शाहकार का नाम वो रखते थे दीवान। अब दीवान में क्या होता था? कसीदे होते थे, हर कसीदे में क्या होता था? शेर होता था। तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब का नाम दीवान नहीं रखा, कुरान रखा। और फिर क्या किया? वो लोग अंदर के एक एक हिस्से का नाम कसीदा रखते थे। अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह के हिस्सों का नाम क्या रखा? सूरा रखा। हर एक सूरत जो है अलग अलग हिस्सा है कुरान मजीद में, हर सूरे का मफहूम अलग है। अब इन लोगों को समझाने के लिए, अब उनके पास क्या होता था? कसीदे होते थे, कसीदे का मजमून पूरा अलग होता था। यहाँ पे क्या है? सूरतें हैं। अब सूरतों के जो हिस्से हैं उसमें एक एक हिस्से का नाम आयत रखा गया, यानी कुरान मजीद में कई सूरतें हैं और हर सूरत के तहत कई आयतें हैं। और एक अहम चीज है, शुअरा क्या करते? अपने शेर का जो आखिरी हिस्सा होता ना, कसीदे के हिस्से को क्या बोलते? बैत या शेर बोलते, और आखिरी वाले को क्या बोलते? काफिया बोलते, कवाफी बोलते अरबी में। काफी की जमा कवाफी। आप कौन सा भी उर्दू का भी अगर कसीदा पढ़ेंगे या शेर पढ़ेंगे, जो आखिर में जो लफ्ज आता है और एक जैसा होता है अदाई में, उसको क्या बोलते? काफिया बोलते। तो कुरान मजीद में क्या है? फासिला है, फवासिल बोलते हैं उसको, फवासिल कुरान। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि कुरान मजीद शेर है, नहीं है शेर, ये नसर भी नहीं है, बिल्कुल अनोखी चीज। ऐसी चीज है कि बड़े बड़े फुसहा भी उसको देख के हैरान हो गए कि ये चीज जो है ये कोई इंसान का कलाम नहीं हो सकता। आप जो पढ़ रहे हैं, कोई एक हिंदुस्तानी पढ़ रहा है, एक अजमी पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, तो वो तो क्या करेगा? सिर्फ मानी को समझ के हैरान होता है। अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, दिल पे उसके असर हो जाता है। लेकिन जो जबानदान है, जिसको जबान आती है, वो तो उसकी तरतीब से हैरान है। ये तरतीब कैसी है, इसमें अल्फाज का चुनाव कैसा किया गया है, इसके फासिले कैसे हैं। तो फासिले को मैं समझाने के लिए आपको ये समझा सकती हूँ। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अब यहाँ पे जो नास आ रहा है उसको बोलते हैं फासिला। तो एक खास किस्म की तरब की कैफियत, खुशी की कैफियत और मजा आ रहा है, एक लज्जत की कैफियत आदमी को महसूस होती है कुरान मजीद पढ़। ये अल्लाह ताला के कलाम की खुसूसियात में से। ये है तो नहीं शेर, और शेर होना कोई अच्छी बात नहीं है। शायर तो झूठी बातें भी कह देते हैं, और जहाँ हरी वहाँ चली रहते हैं शायर। यानी जो भी उरूज पे रहता, जो बादशाह, उसकी तारीफ कर देते, किसी को तरक्की हो गई उसके ऊपर कसीदा लिख देते। तो शायरों की कोई शख्सियत बहुत अच्छी नहीं रहती। हाँ, अच्छे शायर अलग होते, जो ईमानदार शायर होते, ईमानियात में, इस्लामियात में लिखते, या फिर अल्लाह ताला की हम्द लिखते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखते, मदाह लिखते, नात लिखते और मनकबत लिखते। ये अलग किस्म के शायर होते। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने क्या किया? अपनी किताब को मुख्तलिफ नाम दिए। अल कुरान दिया, अल फुरकान दिया, अल किताब दिया। इसी तरह सबसे ऊपर जो नाम है वो नाम कौन सा है? कुरान है। और कुरान में क्या है? सूरतें हैं, हर सूरत में आयतें हैं, और हर आयत के खत्म को हम बोलते फासिला, फासिले कुरान। तो कुरान मजीद के जो नाम है उस बारे में इमाम सुयूती क्या लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को 55 नाम दिए। जिक्र भी फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को। जिक्र यानी याद दिलाने वाली किताब, अल्लाह का जिक्र है ये। फुरकान भी है, बुरहान भी है, जिक्र भी है, किताब भी है, अलग अलग नाम से याद फरमाया। तो कुरान के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये कुरान को हम हमजा के
साथ कुरान भी पढ़ सकते हैं, बगैर हमजा के कुरान भी पढ़ सकते हैं। दोनों का माना तकरीबन करीब ही है, पूरा अलग भी नहीं है। इसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगी, उसका बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को नहीं होता, लिहाजा उसको छोड़ देंगे। अब हम मज़ामीन कुरान की तरफ आ जाते हैं कि कुरान मजीद में क्या क्या मज़ामीन, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे बात की गई है, अल्लाह ताला ने जिन पर कलाम फरमाया, क्या क्या मबाहिस हैं। एक मुख्तसर तौर पे उसका पूरा ओवरव्यू ले लेंगे, बहुत मुख्तसर तरीके से। वैसे तो कुरान मजीद के 30 पारे हैं, बहुत तफसील है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे खोल खोल के बयान फरमाया, फस्सल ना हो फरमा। तो ये कुरान मजीद मुफस्सल है। हम इसको क्या करेंगे, पूरी आयतों को अगर हम एक नजर देखें तो उलमा ने कहा है कि ये कुरान चंद मज़ामीन में अल्लाह ताला ने इसको घेर कर रखा है, चंद मज़ामीन में है ये। अगरचे कि इसमें सब चीजें शामिल है, सब चीजें अल्लाह ताला ने इसमें शामिल फरमा दी है, लेकिन फिर भी इन 5-6 मज़ामीन के अंदर इनको कवर किया जा सकता है। पहले उन आयतों को हम पढ़ लेंगे जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि इसमें सब चीजें मौजूद हैं। जैसे फरमाया वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सूरह अनआम आयत नंबर 59। इसका मतलब क्या है, और कोई दाना नहीं है हब्बा यानी दाना, और कोई दाना नहीं है जमीन की अंधेरियों में, यानी जमीन के इंतहाई अंधेरों में अगर कोई दाना पड़ा हुआ। और फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन, और ना कोई तर है और ना कोई खुश्क है। दुनिया में जमीन और आसमान में जो भी चीजें होंगी, या तो वो तर होंगी यानी कच्ची गीली, या फिर याबिस होंगी यानी सूखी होगी, समंदर में होंगी या समंदर के बाहर की होंगी, जो भी है दोनों में से हटके तीसरा तो नहीं है। तो फरमाया कि जो भी तर है, जो भी खुश्क है, वो जरूर बजरूर इस रोशन किताब में है, किताब मुबीन फरमाया, यानी कुरान मजीद में इस रोशन किताब में सब मौजूद है। जमीन के अंधेरी में कोई हब्बा यानी एक दाना पड़ा हुआ है, उसका भी जिक्र है कुरान में, और हर तर का भी जिक्र है, हर सूखे का भी जिक्र है कुरान मजीद में। सब चीजें कुरान मजीद में मजकूर है। अब कुरान मजीद में हर चीज मजकूर है तो फिर हमें मिलती क्यों नहीं, फिर हदीस शरीफ की भी जरूरत पड़ती, इजमा की भी जरूरत पड़ती, कियास की भी जरूरत पड़ती। ये क्यों पड़ती, ये इसलिए पड़ती कि हर आदमी अपनी सहूलत के लिहाज से करता है कुरान मजीद। एक आम मुसलमान तिलावत करता है और हर एक पे तिलावत करना फर्ज है। थोड़ा जो खास होता है, अगर कुरान मजीद की तफसीर के अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है, वो समझता है आयतों को, और उससे आला दर्जे का, उससे बारीक चीजें महानी निकालता है, नुक्ते निकालता है। कुरान मजीद पढ़ के उस पे कैफियत तारी होती है। और थोड़ा आप आगे चले जाएं, उसको एक एक आयत के कई मानी समझ में आने लगते हैं। ये अइमा किराम ने इस तरह किया है। अभी मैं आगे थोड़ी सी तफसील आपको बताऊंगी कि मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद की तफसीर किस तरह की। 30 जिल्दों में तो की है, एक पारे की एक मुकम्मल ज़ख़ीम जिल्द, लेकिन हजारों जिल्दों में भी तफसीर की है उलमा ने। मैं चंद तफासिर के नाम आगे आपको लूंगी, अभी ये आयतें हम पढ़ेंगे। दूसरी जगह क्या फरमाया, सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 में, वमा कान हाज़ल कुरआन अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये है, तर्जमा ये है कि और इस कुरान की ये शान नहीं कि कोई अपनी तरफ से बना ले बगैर इसके कि अल्लाह उसे उतारे, यानी अल्लाह ताला के नाजिल किए बगैर कोई अपनी तरफ से बना ले, ये तो कुरान की शान के लायक नहीं। यानी कुरान जिस लेवल की किताब है, जिस कदर उसमें बलागत है, फसाहत है, आला दर्जे की जो किताब है, कोई भी उसको अपने से नहीं घड़ सकता। जिस तरह लोग बोलते थे कि इसको नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से घड़ लिया है, लोगों के इतराज़ात। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद की ये शान नहीं है कि वो अल्लाह ताला के नाजिल किए बगैर खुद से कोई घड़ सके, वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि, बल्कि ये जो किताब है ये पहली वाली किताबों की तस्दीक करने वाली है। यानी तौरात की तस्दीक कर रही है ये किताब, इंजील की तस्दीक कर रही है, जबूर की तस्दीक कर रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे, सबका जिक्र कुरान में आ रहा है और तस्दीक हो रही है। तो अगर कोई अपने से घड़ता तो पुरानी ये सब खबरें कैसे आती थी उसके अंदर, और एक एक चीज की बहुत तफसील आ रही है। तो फरमाया कि ये तो पहली वाली, इससे पहले जो किताबें गुजर चुकी है उसकी तस्दीक करने वाली किताब है। और क्या है, वो तफसील अल किताब, और लौह में जो कुछ लिखा है सबकी तफसील है। अल्लाह ताला ने लौह महफूज में जो लिखा है उसकी तफसील है इस किताब में। ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं, ये किताब में जो भी है वो 100% दुरुस्त है। वो मिनल्लाह है, मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। रब्बुल आलमीन यानी तमाम आलमों को पालने वाला, तमाम आलमों का परवरदिगार, तमाम आलमों की परवरिश करने वाला, सबको पालने वाला। तो वो जो
جو رب سب کو پالنے والا ہے اس کی طرف سے یہ آیا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی، تر بھی ہیں، خشک بھی ہے، سب چیزیں آ گئی۔ پھر یہ والی آیت میں تھوڑی تفصیل سے کیا بتایا، سورہ یونس کی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ پہلی والوں کی بھی خبر ہے، پہلی والی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور جو لوح محفوظ میں ہے اس کی بھی خبریں یہ دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت دیکھیے آپ، اس میں کیا فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 89، کیا فرمایا، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی ہے اللہ کی طرف سے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ اس میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بشارت دی گئی ہے، کامیابی کی بشارتیں دی گئی ہیں، الگ الگ قسم کی بشارتیں الگ الگ موقعوں پہ دی گئی ہے۔ تو یہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ اب جو میں کل یا پرسوں کے درس میں آپ کو آیتیں سنا رہی تھی کہ قرآن مجید گمراہ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، اس آیت میں کیا فرمایا تھا، اس سے وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق۔ تو قرآن مجید سے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یہ بات قرآن کی آیت سے ثابت ہو گئی کہ وہ فاسقین ہیں، اور فاسقین کی بات قابل قبول نہیں ہوتی، ان کی گواہی بھی نہیں مانی جاتی، ان سے کیا آپ قرآن سیکھتے جا کے؟ تو سمجھ لیجئے کہ جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور گمراہ بھی ہیں تو یہ فاسقین ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں، مومنین میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ ہاں، نام کے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اسی لیے آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن گمراہ ہیں وہ، لہٰذا ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا، اصل بات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہر چیز کا بیان ہے اس کے اندر، دیکھیے ہر چیز کا بیان ہے، فرما دیا۔ پہلی آیت میں کیا تھا، سورہ انعام کی آیت میں تر کا بھی ذکر ہے، خشک کا بھی ذکر ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ پہلی والی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ میں جو بھی ہے اس کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، سورہ نحل کی آیت میں ہر چیز کا بیان ہے اس کے اندر۔ سورہ یوسف کی آیت میں فرمایا، 111 نمبر ہے آیت کا، ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ پہلی والی آیتوں سے تھوڑا ملتا ہوا مضمون ہے، فرمایا کہ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے، یعنی گھڑی ہوئی یا اپنے سے بنا لی گئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ایسی ہے جو پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے، لقوم یؤمنون، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اس قوم کے لیے ہدایت ہے جو صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے۔ اتنی آیات مبارکہ ہو گئی۔ اب ایک حدیث شریف میں آپ کو سناتی ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مضامین کے بارے میں فرمایا ہے، بڑی تفصیل فرمائی ہے۔ حدیث شریف کیا ہے وہ میں تھوڑی سی عربی بھی پڑھ دوں گی تاکہ آپ کو اچھا بھی لگے اور پڑھنے میں مزہ بھی آئے۔ صرف ترجمہ تو نہیں پڑھ کے سناتی ہوں، تھوڑی میری عادت بھی نہیں ہے ویسی، لیکن آپ کو شاق بھی نہیں گزرنا اس لیے پورا بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتی، لمبی حدیث شریف ہے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اردو میں سنانا پڑتا نا۔ حضرت حارث سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے گزرا تو لوگ بات چیت کرنے میں مشغول، مختلف قسم کی بات کر رہے تھے لوگ۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، میں نے آپ کو اس بات کی خبر دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا لوگ یہ حرکت کرنے لگے ہیں، یعنی ایک ٹاپک کو لے کے اس کو تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی بات کر۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کیا لوگ اس طرح کرنے لگے ہیں؟ حضرت حارث نے فرمایا کہ ہاں، حارث آور ہے راوی کا نام، راوی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا آگاہ رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عنقریب فتنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عنقریب فتنہ ہوگا۔ تو حضرت حارث نے پوچھا کہ حضرت علی نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور نے تفصیل بیان فرمائی۔ اب یہاں سے حدیث اصل شروع ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب میں ماضی کی خبریں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور حال کے لیے رہنمائیاں۔ کیا فرمایا، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى من غیرہ فی غیرہ اضلہ اللہ وهو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیغ به الاہواء ولا
तल्तबिसु बिहिल अलसिना वला यशबअ मिन्हुल उलमा। इसका मतलब क्या है? आधी हदीस पढ़ी मैं भी। हुजूर ने फरमाया ये जो अल्लाह की किताब है इसमें माजी की खबरें हैं, यानी तुमसे पहले वालों की इसमें खबरें हैं, और तुम्हारे बाद जो होगा, तुम्हारे बाद जो आएंगे उनके बारे में है, यानी मुस्तकबिल की भी पेशन गोइयां हैं, और फरमाया हाल की रहनुमाई भी है इसमें। व हुक्म मा बैनकुम, जो तुम्हारे सामने हो रहा है उसके बारे में भी है कुरान मजीद में। ये एक फैसला कुन किताब है, फैसला फरमाने वाली किताब है, कोई मजाक नहीं है, हंसी मजाक की चीज नहीं है ये। जो जालिम उसे नजरअंदाज करेगा अल्लाह ताला उसे पारा पारा कर देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, और जो उसे छोड़कर कहीं और से रुश्दो हिदायत का मुतलाशी होगा, कुरान मजीद को छोड़कर किसी और से वो अगर हिदायत ले रहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं, लोग बड़े पसंद करते हैं उनको। हाँ, एक मोमिन है, कुरान मजीद पढ़ता है, हर एतबार से वो फिट है, उसके दीन में कोई खराबी नहीं है। जब वो अगर किसी को सुन लिया तो उसमें खराबी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी है, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, किताबुल्लाह से हिदायत लेने की तौफीक नहीं होती उनको। वो क्या करते हैं, ये स्पीकर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये अच्छा बोलता है, दूसरे लोगों से चीजें सीखते हैं, जिंदगी गुजारने के उसूल दूसरों से सीखते हैं। तो फरमाया कि किताबुल्लाह को छोड़कर जो दूसरों से सीखे अल्लाह ताला उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। अदल्लाहुल्लाह, यानी अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देगा, हिदायत तो उसके पास से चली जाएगी। उसके बाद फरमाया ये अल्लाह की रस्सी है और हिकमत व दानाई से भरपूर पंदो नसीहत है। कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला की रस्सी है, और कैसी रस्सी है? मजबूत रस्सी, इसको जो भी पकड़ेगा वो हिदायत पाएगा। दूसरी बात क्या फरमाई? हुवा जिक्रुल हकीम, ये अल्लाह ताला का जिक्र है, इसमें नसीहत है। उसके बाद फरमाया ये वो सीधा रास्ता है, हुवा जिक्रुल हकीम। क्या फरमाया? ये सीधा रास्ता है जिसकी बरकत से ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल किया जा सकता है। नफसानी जो ख्वाहिशें हैं, बेजा ख्वाहिशें हैं और बुरी ख्वाहिशें हैं, उस पर आदमी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद फरमाया दीगर जबानें कुरान से मुशाबे नहीं हो सकती, यानी कुरान मजीद की जो जबान है वो बिल्कुल फसी है। वला तल्तबिसु बिहिल अलसिना वला यशबअ मिन्हुल उलमा, और फरमाया कि उलमा इससे सैराब नहीं होते, यानी एक आलिम जो है, इल्म वाला जो है, वो जितना कुरान मजीद पढ़ेगा ना उतना उसका शौक बढ़ता जाएगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जिस तरह एक आदमी का पेट नहीं भरता तो उसके लिए बोलते ला यशबअ, खाना कितना भी खाता पेट भरता नहीं उसका, तो सैराबी नहीं होती, उस पेट भरता ही नहीं उसका, तो उसके लिए ये कलिमा इस्तेमाल होता। तो हुजूर ने यहाँ पे क्या फरमाया कि उलमा जितना भी कुरान मजीद को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उनकी भूख बढ़ते जाएगी। कुरान मजीद में ऐसी लज्जत अल्लाह ताला ने रखी है, उलमा इससे सैर नहीं होते। फिर फरमाया कि ये बार बार दोहराए जाने से पुराना नहीं होता। आप जितनी बार भी कुरान मजीद को पढ़ेंगे, हर बार आपको एक नई चीज मिलेगी, नई लज्जत मिलेगी, नया माना समझ में आएगा, और ऐसा लगेगा आपको कि ये आयत तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, बिल्कुल नया माना। आप जब पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि कुरान मजीद को जब भी हम पढ़ते हैं या किसी से एक आयत सुन लिए या फिर खुद से पढ़ लिए, ऐसा समझ में आता है कि अरे ये आयत तो मैं पहले शायद नहीं पढ़ी थी, इसमें ये माना था, अभी तक मेरी तवज्जो क्यों नहीं गई इसकी जानिब। तो क्या फरमाया? वला यखलिकु अन कसरत रद्दी, ज्यादा पढ़ने से ये पुराना नहीं होता। वला यनक़दी अजाइबुहु, और इसके अजाइबात जो है वो खत्म नहीं होते, मोजिज़ात दिखते रहते हैं। वल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इद समिअतहु हत्ता क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही, सूरतुल जिन आयत नंबर 1 और 2। उसके बाद क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यही वो कुरान है, यही वो किताब है, जब उसे जिन्नात ने सुना तो ये कहे बगैर न रह सके। क्या कहा जिन्नात ने? अल्लाह ताला ने सूरह जिन में बयान फरमा दिया, हमने अजीब कुरान सुना है, हमने ऐसा कलाम सुना है, ऐसा अजीब कलाम सुना है जो यहदी इला रुश्दी, जो रुश्द व हिदायत की तरफ बुलाता है, हिदायत देने वाला है। फ़आमन्ना बिही, तो हम उस पर ईमान ले, यानी ऐसा कलाम है इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था, और इसमें वो चीजें थी जो हमें दूसरी किसी भी चीज में नहीं थी। अजीब का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिन्होंने कहा कि ये अजीब कुरान हमें मिला है, तो हम क्या किए? उस पर ईमान ले आए। उसके बाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन क़ाल बिही सदक़ा व मन अमिल बिही उजिरा व मन हकम बिही अदला व मन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और दारिमी में भी है, और तिरमिज़ी शरीफ में क्या नंबर है? 2906, दारिमी 3374। जो कुरान के मुताबिक कहेगा वो सच कहेगा। क्या फरमाया हुजूर ने? मन क़ाल बिही, जो कुरान की दलील से बात करेगा, कुरान के जरिए कहेगा, मुताबिक कहेगा, वो सच कहेगा, और जो उस पर अमल करेगा वो अजर सवाब पाएगा, और जो उससे फैसला करेगा, यानी कुरान मजीद
से अपने मसाइल का फैसला करेगा वो इंसाफ करेगा, इंसाफ का फैसला करेगा, और जो उसकी तरफ बुलाएगा वो सीधी राह की तरफ बुलाएगा। अगर कोई कुरान मजीद की तरफ बुला रहा है तो फरमाया कि वो सीधी राह की तरफ बुलाएगा या फिर सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाएगा। यहाँ पे हदीस शरीफ खत्म हो गई। अगर आप देखें तो ये हदीस जो है जामे और कामिल हदीस, इसका एक एक लफ्ज जो है ना, एक एक जुमला जो है ना, उसमें एक मुकम्मल मजमून है। हर एक पे एक तफसील लिखी जा सकती है, हर एक में। हुजूर ने फरमाया कि पहले वालों की खबर देता है, उलमा ने उसके बारे में भी लिख दिया अलग से किताब। बाद वालों की खबरें देता है, उस पे मुस्तकिल किताब है। सिर्फ बाद वालों की खबरों पे भी नहीं, सिर्फ अलामत क़यामत पे अलग अलग किताबें लिखी गई। बाद वालों में तो हम भी है, हमारे बारे में भी बहुत सारी चीजें आई, क़यामत के बारे में, क़यामत के बाद जन्नत दोज़ख के अहवाल, सब चीजें आ गई। तो एक एक जुमला जो है ना अपने अंदर एक मुकम्मल माना लिए हुए है। बहुत प्यारी हदीस शरीफ है, जामे हदीस शरीफ है। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के मज़ामीन का भी जिक्र फरमा दिया है और कुरान मजीद के मौजिज़ात का भी जिक्र फरमाया है। कुरान मजीद के जामे होने और हिदायत देने वाला होने और मानी के एतबार से कामिल होने का बयान फरमाया है, और फरमाया कि उलमा इससे सैर नहीं होते, जितना वो उसको हासिल करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तिलावत करेंगे, तदब्बुर करेंगे, अल्लाह ताला उनके सीनों को खोलता जाएगा, दिमाग उनके रोशन होते जाएंगे, मानी वो नए नए निकालते जाएंगे। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे 5वीं सदी, 5वीं या 6वीं सदी के, 546 में उनका इंतकाल हुआ। अबू अब्दुल्ला अलाउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, जो अला जाहिद से मशहूर हुए, उन्होंने एक तफसीर की 1000 से जायद जिल्दों में, 1000 से जायद जिल्दों में उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर की। और जिन उलमा ने हर पारे की एक एक जिल्द, हर पारा एक मुकम्मल जिल्द में करा, वो बहुत सारे उलमा हैं। यानी 30 जिल्दों में पूरे कुरान की तफसीर लिखने वाले मुफस्सिर, जैसे इमाम अबू जाफर इब्न जरीर तबरी, जिनकी तफसीर मशहूर है तफसीर तबरी से। इसी तरह तफसीर कबीर है, असल नाम है मफातिहुल गैब, इमाम राजी की। इमाम फखरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राजी उनका पूरा नाम है। इमाम इब्न जरीर तबरी तो 310 में इंतकाल फरमा गए, यानी आप सोचे तीसरी सदी में ये लिख चुके थे। इतनी मुफस्सल कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने ये तफसीर लिखी है। इमाम इब्न जरीर की तफसीर की खुसूसियत ये है कि वो हदीस से और कुरान मजीद की आयतों से तफसीर करते हैं और शान नुज़ूल जरूर बयान करते हैं। इमाम राजी 606 में विसाल फरमाए। इमाम राजी क्या करे, 30 जिल्दों में लिखे तफसीर कबीर। और भी दीगर तफासिर हैं। अली बिन मोहम्मद बिन हुसैन बिन अब्दुल करीम अल बजदवी, बजदवी से वो मशहूर हैं, उन्होंने एक तफसीर की 120 जिल्दों। इमाम गजाली की एक तफसीर है याकूत तावील, 40 जिल्दों में। इब्न नकीब नाम के एक है तफसीर इब्न नकीब, 100 जिल्दों में। तो इससे समझ में क्या आ रहा, इमाम अबुल हसन अशारी की तफसीर है 600 जिल्दों में। और ये जो आखिरी में मैंने बयान की, ये तफसीर इमाम सुयूती के जमाने तक भी मौजूद थी और मिस्र के एक बहुत बड़े उसमें खजाने में मौजूद थी वो, क्योंकि बहुत सारी किताबें जाये हो गई, फौत हो गई, तो उसमें वो बाकी नहीं रही। ये किताबों की तफसील बताने का मकसद क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि आलिम जो होता है उससे वला यशबअ मिनहुल उलमा, उलमा इससे सैर नहीं होते। इतना लिखे लिखते ही है, उसके बाद आखिर में क्या लिखते, अल्लाह ताला की तौफीक से जो चीजें मुझ पर खुली ये मैंने लिखी है, अगर कमी हो तो अल्लाह माफ फरमाए, अगर मैंने दुरुस्त लिखा है तो ये मिनल्लाह है, लेकिन मैं इसका हक पूरा नहीं कर सका। 1000 जिल्दों में तफसीर लिख के उसके बाद उलमा ऐसा बोलते, तो क्या कैसा बड़ा खजाना होगा ये सोचिए। अब हम थोड़ा खुलासे की तरफ आएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम मज़ामीन की तरफ जा रहे हैं। मज़ामीन को बताने के लिए पहले मैंने आयतें आपको सुनाई थी, फिर अहादीस मुबारका आपके सामने पेश की। अब देखिए हम थोड़े खुलासे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला मजमून जो है कुरान मजीद में जिसको बयान फरमाया गया है वो है अकायद। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी जात और अपनी सिफात, इसी तरह अपने रसूलों, फरिश्तों, किताबों और मब्दा और माद, यानी इंसानों की शुरुआत, इंसान को अल्लाह ने बनाया है, कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, फिर दुनिया के बनाने का जिक्र, जमीन और आसमान के बनाने का, ये मब्दा में आ गया। माद यानी दोबारा उठाए जाने का जिक्र, हश्र और नश्र यानी इंसानों को दोबारा से उठाना, उनके आमाल उनके सामने पेश किए जाना, हिसाब वगैरह। इसी तरह खजा व क़द्र, अल्लाह ताला ने तकदीरें लिखी हैं और फैसले फरमाए हैं सबके अपने अपने, तो ये चीजें सब अकायद के अंदर आती हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों में अकायद का बयान फरमाया है। तो मज़ामीन कुरान में पहला मजमून क्या है, अकायद है। और ये जो आयतों का मैं जिक्र कर रही हूँ, अकायद कोर्स में बहुत सारी आयतें हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला की जात का जिक्र आया, अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र आया, किताबों का, रसूलों का, फरिश्तों का, क़यामत का, जन्नत और दोज़ख का, मरने के बाद उठाए जाने का, अलग अलग मज़ामीन आते गए और हर मजमून के तहत हमने 5, 10,
5-10 करके बहुत सारी आयतें उसमें कवर कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकायद का बयान, अकायद के दुरूस जो नहीं सुने हैं वो लोग उसको सुन लीजिए, आपको ये पढ़ने में भी आसानी होगी। बहुत सारी आयतें वहाँ पे पढ़ने में आई हैं। तो अकायद एक मजमून हो गया। दूसरा मजमून है तहजीब नुफूस। तहजीब नुफूस यानी तज़किया नुफूस, नफ्सों को पाक करना। जैसा कि मैंने दूसरे दर्स में आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है तो उसका मकसद क्या है, तो तज़किया नुफूस है। तो तज़किया नुफूस से मुतालिक बहुत सारी आयतें आई हैं, जैसे झूठ से मना फरमाया गया और हसद से मना फरमाया गया, नफ्स की जो बुराइयां हैं उससे मना फरमाया गया। जितनी नफ्स की खराबियां हैं, आप जाहिरी उयूब को ले लें या फिर बातिनी उयूब को ले लें। जैसे चोरी करना है, ये क्या हो गया, जाहिरी तौर पे एक ऐब हो गया कि अब आदमी अपने हाथों से ये गुनाह करता है। लेकिन हसद जो करता है ये बातिनी खल्ब की बीमारियों में से है। तो खल्ब की बीमारियां जो है उसका भी इलाज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, उसका भी जिक्र फरमाया। गीबत करने से मना फरमाया है, एक दूसरे को बुरे अल्काब से पुकारने से मना फरमाया है। इसी तरह झूठ है, चोली है और बुहतान तराशी है, ये फिर झूठी गवाही देना है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आ जाती है। तो तहजीब नुफूस में वो तमाम बुरी चीजें आ जाती हैं जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है आयात में। यानी अखलाकियात का जहाँ पे हुक्म दिया गया है हम उसको तहजीब नुफूस के तहत रखते हैं। उसके बाद है अवामिर और नवाही, यानी वो आयतें जिसमें हुक्म दिया गया है। जैसे फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। तो अब यहाँ पे क्या है, रोजे की फर्जियत का हुक्म दिया गया। तो हुक्म जहाँ भी आ रहा हम उसको बोलते अम्र, अम्र की जमा है अवामिर। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुलू राइना, कल ही आयत आई थी, ए ईमान वालों राइना मत कहो। तो ये आयत क्या है, नहीं में से आ गई। जो चीजें करने से मना किया गया हम उसको बोलते नहीं, जमा है उसकी नवाही। तो अवामिर और नवाही का बयान है कुरान मजीद में। फिर चौथे नंबर पे गुज़िश्ता उम्मतों के वाक़यात है। गुज़िश्ता उम्मतों के वाक़यात जैसे आद का वाक़या बयान फरमाया, समूद का वाक़या बयान फरमाया, इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। तफसील से अल्लाह ताला ने एक एक उम्मत के वाक़यात बयान फरमाए। तो ये जो वाक़यात है ये वाक़यात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के भी हैं, उनकी उम्मतों के भी हैं, उनमें से ईमान लाने वाले लोगों के भी है। जैसे असहाबे कहफ का वाक़या है, ईमान वालों का वाक़या है। फिर असहाबे उखदूद का वाक़या है, वो भी ईमान वालों का वाक़या है। फिर फिरौन का वाक़या है, ये तो मुतमर्रिदीन है, जो सरकश है, उनके वाक़यात भी बयान फरमाए। नमरूद है, फिरौन है, इन लोगों के वाक़यात। तो अल्लाह ताला ने हर दो किस्म के लोगों के वाक़यात बयान फरमाए हैं ताकि हम उससे नसीहत हासिल करें। यानी जो लोग गलत राह पे चले, एक से ज्यादा माबूदों को जिन्होंने पूजा या फिर जिस भी खराब किस्म की बुराई में वो मुलव्वस थे, उसके बाद अल्लाह ताला का अजाब आया, तो हमें इस बात से अल्लाह ताला ने नसीहत दी कि यानी पुराने वाक़यात जिक्र करने का मकसद क्या था। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को अल्लाह ताला दिलासा दे रहा था, जैसा कि कुरान की आयत से मौजूद है, लिनुसब्बित बिही फुआदक। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, लोग तकलीफें देते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले वाले अंबिया के साथ भी इस तरह लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है, पहली वाली उम्मतों के साथ ये हुआ है। तो मिसालें दे दे के अल्लाह ताला ने हुजूर को दिलासा दिया। फिर हुजूर की उम्मत के लिए नमूना पेश कर दिया गया कि उनके साथ उनके पास इस तरह से अजाब आया था, लिहाजा पहले वालों के साथ जो हुआ है अपने साथ वो ना हो, पहले का पहले हम मुतनब्बे हो जाएं। तो गुज़िश्ता उम्मतों के वाक़यात भी कुरान मजीद की एक अच्छी खासी तादाद है आयतों की जिसमें ये बयान किए गए। उसके बाद निज़ाम मईशत को बयान किया गया। अब निज़ाम मईशत यानी इंसानों के जो अहवाल हैं और उनकी जो मईशतें हैं, यानी इंसान किस तरह से कसब माश करता है, किस तरह से कमाता है। यानी ज़राअत के बारे में भी आयतें आई हैं, यानी एग्रीकल्चर की, आसमान से पानी नाजिल होना, फिर जमीन से फिर सब्जा उगना, फिर खेती बाड़ी का भी उसमें जिक्र आ गया है, फिर तिजारतों का जिक्र आ गया है, उसमें क्या हलाल है क्या हराम है, फिर सूद की हुर्मत के बारे में भी आयतें आई हैं। तो इंसान की जो मईशत है उसके बारे में तफसील से बहुत सारी आयतें आई हैं। इसी तरह शराब की हुर्मत के बारे में है, खिंजीर की हुर्मत के बारे में है, और जो चीजें हलाल है जैसे बै है, खरीदो फरोख्त, उसके बारे में भी आयतें आई हैं। उसके बाद जो है निज़ाम मुआशरत, एक तो माश हो गया यानी कमाना खाना और खरीदो फरोख्त के तरीके, इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी में स्टेबल हो सकता है, कमाने के क्या सही तरीके वो अपना सकता है, वो भी बयान फरमा दिया। और ये भी बयान फरमाया कि इंसान अपनी जाती जिंदगी में किस तरह एक अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छी बीवी और अच्छा शौहर किस तरह बना जा सकता है, उसके बारे में भी मुस्तकिल आयत है। उसको बोलते निज़ाम मुआशरत, यानी मियाँ बीवी को आपस में कैसा रहना है, आदाब मुआशरत बयान फरमा दी अल्लाह ताला ने। और इज्तिमाई जिंदगी बसर करने के जो आदाब बयान फरमाए वो भी इसी में शामिल है। निज़ाम मुआशरत, एक दूसरे के साथ
رہنے کے کیا آداب ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اہل و عیال کے ساتھ کیسا رہنا ہے، معاملات کیسے کرنا ہے، تعلقات کیسے رکھنا ہے، کیا الگ الگ نوعیت کے یہاں پہ مسائل بیان فرما دیے گئے ہیں، جیسے میاں بیوی آپس میں رہنا کیسا ہے، ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، آدمیوں کو عورتوں پہ کیا فضیلت دی گئی ہے، پھر اگر دونوں میں نہیں بنتی ہے میاں بیوی میں تو علیحدہ ہونے کے کیا آداب ہے، طلاق اگر آدمی اپنی عورت کو دے تو کس طرح دے، اس کے بھی آداب بیان کر دیے گئے، عورت اگر خلا کی طلبگار ہے تو اس کے بھی شرائط ہیں، پھر ثالثی اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے یعنی میاں بیوی کے درمیان تیسرا آدمی بیٹھ کے دونوں کی طرف سے ایک ایک آدمی مقرر ہو، پھر دونوں کے مسائل حل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا، بہت سارے حکام۔ اسی طرح پردے کے حکام بھی آ گئے، اوامر و نواہی میں اگرچہ کہ وہ آ چکے ہیں لیکن اس کے تحت بھی آئیں گے وہ، کیونکہ بطور خاص وہ نظام معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پردے کے بھی حکام آ گئے، کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہیں تو کس طرح سے جائیں، کھٹکا مار کے جانا ہے، آواز دے کے جانا ہے، کون سے ٹائم پہ جانا ہے، یہ چیزیں بھی بیان فرما دی۔ یہ بھی بیان فرما دیا کہ گھر میں آپ گئے، دعوت ہوگی، کھانا وانا کھا لیے، 5-10 منٹ میں فوری نکل جانا ہے، لمبے ٹائم تک بیٹھنا نہیں ہے، کھانے کو دیکھنا نہیں ہے، گھورتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں مہمان چلے گئے بعد میں کھانا بچے ہوا ہے تو وہ حصہ ملیں گا، یہ معیوب چیز ہے، یہ بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ کھانے کے برتن کو نہیں دیکھنا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ آپ سوچے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، بغیر اجازت کے کھانا کسی کا نہیں کھانا ہے، کس کس کے گھر میں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو یہ سب آداب معاشرت۔ اس کے بعد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مشتمل ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینے والی آیتیں اور برائی سے روکنے والی، جیسے اعمال خیر کرنے کے بارے میں فرمایا گیا، شر سے بچنے کے لیے فرمایا گیا، معروفات کی تلقین پر ابھارا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو، تم برائی سے روکو، تم اچھائی کی طرف بلاؤ، اس طرح کی آیتیں ہیں۔ اور ایک اہم ترین مضمون ہے معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ تم سوچو کہ زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے۔ یہ عقائد سے تھوڑا قریب ہے یہ مضمون، آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان میں جو عجائب ہیں، اسی طرح انسانوں، حیوانوں اور نباتات میں غور و فکر کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، اس جانب توجہ دلائی تاکہ عبرت حاصل کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور کائنات میں جو آثار ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اس کو دیکھ کر آدمی کیا کرے، اس کو مشاہدہ کر کے، اس کو دیکھ کے آبزرویشن کرنے کے بعد میں آدمی سوچے کہ ضرور اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، پھر فرمایا کہ ثم ارجع البصر، دوبارہ سے آسمان کی طرف دیکھو، بار بار آسمان کی طرف دیکھو، تمہاری نظر پلٹ کے آ جائے گی کہ آسمان اللہ نے بنایا کیسا ہے۔ پھر فرمایا کہ اونٹ کی طرف دیکھو، اونٹ کیسا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو اس طرح مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ، اللہ کی مخلوق کو جب تم دیکھو گے اور تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو بہت ہی عمدہ طریقے سے بنایا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، ایسا کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا، جب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے، تم اس کو غور کرو، ماں کے اوپر غور کرو کس طرح سے وہ رحم کرنے والی، اس کے بعد تمہیں اللہ کی رحمت سمجھ میں آئے گی۔ تو اس طرح سے مخلوقات کو دیکھ کر ان کے بارے میں غور و فکر کرنے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو مستقل آیات ہیں اس کے اوپر جس کو ہم بولتے ہیں معرفت الہی کے متعلق آیات، اور بعض آیتیں وہ ہیں جو کائنات کی بے ثباتی بیان کرتی ہیں، بہت ساری آیت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے، ایسی 4-5 مثالیں الگ الگ دی اللہ تعالیٰ نے، کھیتی باڑی کی بھی مثال دی اور فرمایا کہ کھیتی جو برباد ہو جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، اس کے جیسی مثال ہے دنیاوی زندگی کی۔ جب وہ لہلہاتی ہوتی ہے آدمی خوش ہوتا ہے کہ یہ تو اب کھیتی فائدہ پہنچانے والی ہے، اس سے میں اتنا کما لوں گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی، ہوائیں چلتی، پوری کھیتی برباد ہوتی۔ تو دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی پائیداری، یعنی آخرت میں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دنیا میں جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک قسم کی آیت، اور ایک وہ بھی آیات ہیں جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے ہوئے، اگرچہ کہ پچھلی امتوں کے تذکرے جو ہوئے اسی میں اس کو شامل کر لیا گیا، لیکن یہ الگ سے ہم مضمون رکھ سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، ان کا الگ سے ذکر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے کہ آپ کے بارگاہ کے کیا آداب ہے، آواز اونچی نہیں کرنا ہے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے، انظر نہ کہنا ہے، اور ایسے کوئی کلمات زبان سے نہیں نکالنا ہے جو بے ادبی والے ہیں، اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ کل میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، استنباط والی آیت
आयत में वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम, रसूलुल्लाह की बारगाह में आना है, कोई मसला हो गया तो गुनाह हो गया तो भी रसूलुल्लाह के पास आना है। मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बताए। इसी तरह अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तारीफें की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, उनकी तारीफ की, निअमल अब्द फरमाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो क्या ही अच्छे बंदे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे फरमाया, बहुत तज़किरा किया मूसा अलैहिस्सलाम का, उनकी तारीफें की। फिर अंबिया का जब एक साथ जिक्र फरमाया तो सबके साथ फरमा दिया कि हमने इन सब को फजीलतों से नवाजा है, ये सब के सब अस्हाब फजीलत है, अल्लाह ताला के खास बंदे हैं। तो अंबिया का जो जिक्र आया है वो अलग किस्म की आया। तो इस तरह मज़ामीन कुरान को हम एक नजर में समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अहायत का बयान फरमाया है, तहजीब नुफूस का जिक्र किया है, अवामिर और नवाही वाली आयतें नाजिल फरमाई है, गुज़िश्ता उम्मतों के वाक़यात बयान फरमाए हैं, निज़ाम मईशत को बयान फरमाया है, इसी तरह निज़ाम मुआशरत को बयान फरमाया है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। यानी हमें ये हुक्म हमें खास है हमारे लिए कि आप नेकी का हुक्म आपको देना है और बुराई से रोकना है। फिर मारिफत इलाही के लिए अल्लाह ताला ने दावत दी है। फिर कायनात की बेसबाती का बयान फरमाया है कि कायनात ये जो है दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। इसी तरह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक जो अकीदे हैं उनका अलग से बयान है, उनके आदाब को बयान किया है, उनकी तारीफें की। तो आज का दर्स हम इसी पे खत्म करते हैं। इसको दोबारा से सुनिए, बहुत अहम है। तो सबसे पहले जो हम आयतें पढ़ने वाले हैं, वैसे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उन आयतों की तरफ आएंगे जो निज़ाम मुआशरत वाली। अवामिर और नवाही की आयतें बहुत वसी हैं, उसमें से बाज आयतें कौन सी है, मुआशरत वाली है, यानी आपस में आपको एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, मियाँ बीवी के क्या ताल्लुकात हैं, बच्चों के साथ आपको कैसा रहना है, बच्चों के की क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर, ये सब तफसील से बयान फरमाया गया है। वो आयतों की तरफ आएंगे। अखलाकियात की तरफ हम आएंगे, यानी कौन से अखलाक आपको अपनाना है, कौन से अखलाक बुरे हैं। अखलाक की खराबियां जब आपको मालूम होंगी और समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया है, तो आप उसको छोड़ने लगेंगे। कुरान मजीद की बरकत से, अल्लाह ताला के कलाम की बरकत से, फिर अहादीस शरीफा की मदद से हम उन आयतों को समझने की कोशिश करेंगे। मुफस्सिरीन किराम की तफसीरों को हम सामने रखेंगे, उन्होंने क्या फरमाया है उसके लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वसल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि।